Hello student, again I am in front of you to discuss the language second of paper 2, which is from question number 121. So question is of passage. As I guess you must read the passage very well and understand the things. So question number 1 is fill in the blank. Dash is opposite in meaning. Quite simple, superior. The word superior mean opposite, inferior. That is option number 4. Question number 122, which is the statement which best sum up the passage is. अब जो passage के बारे में बता रहा है, that is irrational beliefs decline with the advancement of science. कि जैसे जैसे साइंस हमारी बढ़ती जाती है वो बिलीव्स जो irrational, जो गैर वाजिब है वो डिक्लाइन होते जाते हैं. तो ऑप्शन नंबर 3 इज अप्रोप्रिएट हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 123, which is we should not despise the savage tribes because we are no less superstitious than they are. हम इसीलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम भी उन्हीं की तरह वी आर नो लेस सुपरस्टिशियस दैन दे आर. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन 124 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इट. किसके लिए साइंटिफिक बेसिस रहता है. तो पैसेज में बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है फ्राइडेज आर एज गुड एज अदर डेज. और यहाँ भी मेरे पास एक कन्फ्यूजन है ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज. और लेट्स सी कि आंसर की क्या बताती है. वी शुड नॉट वॉक अंडर अ ladder. So but I will go with first one. Fridays are good as other days. Who believes, next question number 125, that is who believes in superstitions. Superstition में believe कौन करता है. All tribals and some civilized nations, all civilized nation, only some civilized nation और only some tribals. तो यहाँ पर दोनों ही appropriate answer रहेगा कि whether we are civilized but after that some of us are सुपरस्टिशियस. तो यहाँ भी ऑप्शन हमारा 1 है, ऑल ट्राइबल्स एंड सम सिविलाइज्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 126, विच इज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब स्टेटमेंट क्या गिवन है. एंशियंट ग्रीक्स वर सुपीरियर टू अदर यूरोपियन नेशंस. B1 इज साइंस हेल्प अस फाइट सुपरस्टिशन. अब साइंस ने हमें हेल्प किया है, डेफिनेटली किया है कि हमारे जो भी मिथ्स हैं, जो भी सुपरस्टिशन है उससे हम फाइट कर पाएँ. दैट मीन्स हम ओवरकम कर पाएँ. तो यहाँ पर जो बी पार्ट है वो राइट है एंड ए इज़ रॉन्ग कि एंशियंट ग्रीक वर सुपीरियर टू अदर यूरोपियन नेशन. तो ए इज़ रॉन्ग एंड बी इज़ राइट. दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 127, which is which part of a speech is the underlined word in the following sentence. On the whole that is true. दैट पार्ट को अंडरलाइन किया गया है और यहाँ पर दैट क्या है. तो दैट इज ट्रू. दैट वर्ड इज रिप्लेसिंग द नाउन. क्लियरली इट इज प्रोनाउन. दैट इज प्रोनाउन इज ऑप्शन नंबर 3. Next is identify the part of a speech of the underlined word in the following sentence. That is question number 128. Answer of the question is underlined part है it is often held that as a principle. Often word कौन सा part of a speech है. तो it is adverb because it is qualifying the verb. held word को qualify कर रहा है कि कभी कभी held होता है and the word which qualifies verb is called adverb. ऑप्शन है, ऑप्शन इज 3rd. Now 129, which is again passage is given here. If I ask that means passage आपने पढ़ा ही होगा. I am not going to read the passage here. Question is to smoke run
double the risk of contracting heart diseases. What does it mean by contracting? So very easily we can give the answer of this question. Contract means in catching power in contact with, so that is catching. Option is fourth. Now question number 130, which is an example of limited area of health is. अब लिमिटेड एरिया ऑफ हेल्थ में एग्जाम्पल क्या जाता है? स्मोकिंग, टेकिंग एक्सरसाइज, वेयरिंग अ सीट बेल्ट. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हेल्थ, सो दैट मीन्स टेकिंग मेडिसिन. ऑप्शन नंबर 1 अगेन हेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 131, which is why does a common man choose to wear a seat belt? Seat belt common man क्यों करना चाहता है? For fear of the policeman, there is a law for it, he wants to protect himself, or it is fitted in the car. कार में फिट होती है इसलिए कोई नहीं पहनता है. अगेन यहाँ पर अब कॉमन मैन doesn't know the law, but it should be there is a law for it, or he wants to protect himself. Again I will tell that there is a confusion between 2 and 3, क्योंकि common people wants to save himself. फैक्ट है बिल्कुल कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन देयर इज़ अ लॉ ऑल्सो फॉर इट, और इस वजह से भी लगाना चाहते हैं. एज यू नो देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स आर देयर, सो कॉमन पीपल वांट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ वेदर टू फाइन और टू हेल्थ इंजरी, सो एंड सो ऑन. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्वेश्चन 132 इज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स आर, अब स्टेटमेंट क्या है? दो इट इज़ वेरी डेंजरस, सम पीपल डोंट क्विट म्यूजिक, ओ सॉरी स्मोकिंग. अब पता है सभी, एवरीबडी नोज दैट, बट आफ्टर दैट दे डो नॉट अबंडन स्मोकिंग, वो स्मोकिंग नहीं छोड़ते हैं, तो ये तो सही है बात. अगला कोई स्टेटमेंट देखते हैं. वेदर और नॉट टू ड्रिंक एल्कोहल, क्या पीनी चाहिए या नहीं, इज़ नॉट अ हेल्थ डिसीज़न, ये हेल्थ डिसीज़न नहीं है. तो हियर अब ये बात रॉन्ग है कि हेल्थ डिसीज़न नहीं, डेफिनेटली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू पे ये इफेक्ट करता है अल्कोहल लेना. तो ए पार्ट इज़ रॉन्ग, यानी ए स्टेटमेंट इज़ राइट एंड बी इज़ रॉन्ग, दैट इज़ बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2. Question number 133, which is which of the following pieces of advice can be easily ignored by the people? अब advices are given for the safety measures, so but if you will follow, you know very well which can be accepted or followed and which can be ignored. तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए, डोंट ड्राइव अ मोटर बाइक, डोंट स्मोक, वेयर अ सीट बेल्ट, तो ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए या नहीं की जा सकती हैं. सीट बेल्ट भी वेयर करना है, और ड्राइव मोटर बाइक तेज नहीं ड्राइव करनी है, वेयर अ सीट बेल्ट पहन. तो डोंट स्मोक वाली जो एडवाइस है वो लेस इम्पोर्टेंट है, यानी उसको हम इग्नोर कर सकते हैं. तो स्मोकिंग ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर 2, डू नॉट स्मोक. Next is 134. Which part of speech is the underlined word in the following sentence? Yet we are all making a whole range of decisions. So yet is a conjunction here, which is option number 3. Question number 135 is which part of a speech is the underlined word in the following sentence? Understanding this process is crucial. अब यहाँ पर this process, this word is, दो ही तरीके से this यूज़ हो सकता है. You know very well, grammatically हमने क्लासेस में ये बताया है कि this एक तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और दूसरा प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, जो डिटरमाइन करते हैं चीज, डिटरमाइनर होते हैं. और प्रोनाउन ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, दैट मीन्स इट इज डिटरमाइनर एब्सोल्युटली, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 136, which is which one of the following makes the communication a
साइक्लिक प्रोसेस, अब कौन सी चीज़ जो है वो बनाती है मैसेज, सेंडर, रिसीवर या फीडबैक? तो फीडबैक जो है हमारा वो साइक्लिंग प्रोसेस बनाती है कि वी कैन कम्युनिकेट इन अ वे, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 137, टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग. अभी हमने क्वेश्चन में बॉटम अप प्रोसेस डिस्कस किया, यहाँ टॉप डाउन है. तो एवरीबडी नोज क्या मतलब होता है टॉप डाउन का, फ्रॉम द लेवल टू लो लेवल. तो प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट, विच इज ऑप्शन नंबर 2. 137, प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 138, which is a teacher asks her learner to discuss in group of 4, jot down ideas and then develop them in an outline to write a paragraph. Learners then edit the paragraph into a final draft. Which strategy of writing does the टीचर फॉलो हियर? किस टाइप की राइटिंग वो कर रही है? अब यहाँ पे डिस्कशन मेथड, ग्रुप वर्क, प्रोसेस अप्रोच और प्रोडक्ट अप्रोच. तो यहाँ पर जो अप्रोच यूज़ की गई है वो प्रोसेस अप्रोच यूज़ की गई है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज हियर. Next is question number 139, which is transactional listening. Transactional listening क्या होती है? It is an kind of listening which lays emphasis on transaction that is from one to other. आपने transaction term लॉजी ऑफ वर्ड सुना होगा, एक जगह से दूसरी जगह, एक पार से आप बैंक से ट्रांजैक्शन कराते हो, दैट इज़. तो ट्रांजैक्शनल वर्ड में क्लियर है कि जहां हमारे मैसेज को कन्वे किया जाता है इंफॉर्मेशन को. तो ऑप्शन नंबर 2 इज लेज एम्फेसाइज ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन. अगेन ऑप्शन इज 2. क्वेश्चन नंबर 140, which is CALP stands for. What does it mean of CALP? CALP is a cognitively academic language proficiency. Option number 2. Question number 141 is a task in task-based language लर्निंग मीन्स. अगर कोई टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग कराई जा रही है, उसमें जो टास्क है वो क्या रहता है, उस वहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग का मतलब है अ टास्क फॉर द टीचर ऑफ असेसिंग लर्निंग लर्नर्स और एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड. तो सेकेंड ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट. ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर टारगेट लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है. अगेन ऑप्शन नंबर 2. Now question 142, which is according to National Curriculum NCF 2005, which one of the following is not an objective of language teaching learning? तो कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, कि हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, or the option is the competence to understand. What one here? Ability to read with comprehension or effortless expression. तो response and not an objective of to know the history of language. That is 1. Which one of the following? Question number 143 is which one of the following is not true of language learning? लैंग्वेज लर्निंग के लिए ट्रू नहीं है. सो दैट इज़ ऑल्सो लैंग्वेज लर्निंग टेक टाइम. अब ये उसके लिए ठीक नहीं है कि लैंग्वेज लर्निंग है वो टाइम लेता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? क्वेश्चन नंबर 144, दैट इज विच इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर. कौन सा इफेक्टिव वे है टीचिंग करने का या लर्न करने का ग्रामर ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर? तो इफेक्टिव प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन अ नेचुरल डिस्कोर्स देन एक्सप्लेनिंग हाउ द फॉर्म इज मेड एंड यूज. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर
3. अब टीचिंग थ्रू अ टिपिकल ग्रामर बुक इट कैन नॉट बी, हो नहीं सकता दैट इज, और प्रेजेंटिंग सिंगल सेंटेंस तो इट इज़ नॉट ऑल्सो द वे टू कि हम सिंगल सेंटेंस सिखाएं तभी वो इफेक्टिव होगा. सो यहाँ पर कि हम नेचुरल रीड सिखाएं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. नेक्स्ट इज 145 which is what status is given to English language according to the Indian Constitution. तो Indian Constitution के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को क्या बोले, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि ये एसोसिएट करती है दैट इज a language teacher. Question number 146, which is a language teacher asks learner to write a paragraph on scarcity of water. Learners gather information from the science, social science books and so on. So such task aims at, ये टास्क किस लिए एम करके कराया जा रहा है कि आई एम गिविंग यू टॉपिक टू राइट. सो दैट इज इन्हेंसिंग को करिकुलर स्किल्स और डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड, कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स. नो, इट इज the task is for achieving language learning across the curriculum, कि curriculum के साथ ही language learning भी सीखी जाए, which is option number 4. Now question is 147 which one of the following is not an assessment tool for language learning. assessment tool क्या नहीं है. रेलिया आपको पता है assessment के लिए जरूरी है क्योंकि real objects we know for that assessment, portfolio is required, assignment is required, so observation schedule is not required. That is option number, it is 2. 148 टीचिंग अ नॉवल इज़ टू प्रमोट. अब नॉवल टीचिंग किस लिए की जाती है, इट इज़ रीडिंग फॉर प्लेजर, कि प्लेजर के लिए. इट इज़ अगेन ऑप्शन नंबर 2. 149 स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रैटेजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट. तो आई ऑल्सो टॉट दिस स्टेटमेंट, दिस केस इन द क्लास वेरी क्लियरली दैट कि जो स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस है किस स्ट्रैटेजी के लिए होता है इन लैंग्वेज टीचिंग, एम्ड एट एंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज. ऑप्शन नंबर 4 कि लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराने के लिए. नेक्स्ट एंड लास्ट 150 दैट इज इनपुट हाइपोथेसिस रेफर्स टू. इनपुट हाइपोथेसिस का मतलब रहता है कि व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज द लर्नर्स नो एंड द लैंग्वेज दे आर टॉट, कि जो वो समझ रहा है और जो लैंग्वेज सिखाई जा रही है उनको उससे रिलेटेड है इनपुट है. वॉट सो एवर इनपुट वी आर गेटिंग विच द टीचर इज टीचिंग एंड स्टूडेंट इज गेटिंग वेरी क्लियरली. तो उस ग्रास्पिंग को देखने के लिए इनपुट हाइपोथेसिस का मतलब यूज़ किया जाता है. तो हियर ऑप्शन नंबर 3 is appropriate here. So that's all students, and I hope you understand the things well and hope for the best. All the best students.